In the present time of the pandemic, each and every individual and each and every industry has seen its effect. And one such industry, which is very close to me, is what I'm going to talk about. There are some industries which are bound to reinvent themselves. There are others which have become completely obsolete. आज मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाली हूँ विच इज़ वेरी क्लोज टू मी. ये वो इंडस्ट्री है जो हम सबको खूबसूरत दिखाने में, हमें ग्रूम रखने में और हमारी खूबसूरती दिखाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और क्योंकि आप लोग बार बार मुझसे पूछते रहते हैं द सीक्रेट ऑफ माई हेयर स्टाइल्स एंड हाउ दे लुक गुड, आई हैव गॉट माई गेस्ट टुडे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई हेयर स्टाइल्स. एंड अगर आपने रिसेंट पिक्चर देखी है जो मैंने पोस्ट की है मेरे इंस्टाग्राम पे, दैट हेयर स्टाइलिंग इज ऑल्सो डन बाय हिम. He has trained many professionals. He has done more than 5,000 classes and he's an expert hairstylist. He is the mentor and the director of Vipul Chudasama Academy and Salon, and he is going to be live with me. Without further ado, please welcome Vipul Chudasama on the show. Vipul, hello. Hello. How are you? Hi, Akriti. Very good. Thank you. How are you? I am good. I'm so glad to have you on my show. Pleasure. And you're looking beautiful. Thank you. But देखो ना मेरे बाल कैसे हो गए हैं. बहुत जरूरत है इन्हें आपकी. I am also like craving to do your hair. It's been, I think, almost 65 days Yeah. almost. Yes, it's been that much time and मेरे बाल भी बढ़ गए हैं. देखिए आपने यहाँ पे किए थे, अभी इतना लेंथ बढ़ गया है. I know. बस अभी थोड़े दिन में ही I think lockdown खुल जाए. Praying. जी, we all are praying the same. Vipul, how are you doing in this lockdown? Well, first 2 weeks it was very boring, and I was feeling restless because I travel a lot. I travel extensively all across the country. But पहले 2 हफ्ते में ऐसा लगा कि करे क्या होगा अभी 21 days का लॉकडाउन है, इतने दिन कैसे घर में रहेंगे. But you know that when you have certain situations, if you really fight with it, you can come up with a lot of opportunities. And almost 60-65 days हो गया. I've been doing a lot of stuff. In fact, I feel I'm now more busier than what I used to do. So what keeping are myself. you training? So I've been training. I've been doing a lot of live sessions, Zoom meetings with all industry people. Planning for post lockdown, what we're going to do in terms of hygiene and healthy precautions for our lovely clients and our team members, and also doing a lot of online education for our industry professionals. And apart from that, for me personally, I've been learning cooking. I've been learning makeup. Yeah, it's a lot of stuff. So basically, That's amazing. this COVID has given a lot of opportunity to learn new things. Right, we have a lot of time in hand जो पहले नहीं था हमारे पास. कुकिंग आपने करना सीखा. What is this new thing that you made? राजमा चावल. अरे वाह. सबसे पहले मैगी बनाना सीखा, उसके बाद राजमा चावल, उसके बाद छोले, देन पास्ता. या हाँ, वाह. मैंने तो बस एक चीज बनानी सीखी है. एक्चुअली बहुत चीजें बनानी सीखती, बट डोसा बनाना मैंने एक्सपर्ट हो गई उसमें मैं. तो मैं आपको बुलाऊंगी घर पे, आप आना किसी दिन. I'll make you eat dosa. वहां तक नहीं पहुंचा हूं मैं अभी. It's just the beginning for me. Yeah, so Vipul, सलॉन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है विद द एंटायर लॉकडाउन जो हमारी कंट्री पे इम्पोज हो गया. किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ और एक साथ पूरी की पूरी दुनिया लॉकडाउन में चले जाएगी. तो जब लॉकडाउन हुआ तो आपको क्या पहले से इसकी इंफॉर्मेशन थी कि इतना लंबा लॉकडाउन होने वाला है, कि आपने इसके लिए कोई प्लानिंग की हो, और इट जस्ट केम टू यू एज अ शॉक? It was absolutely shocked. Nobody was prepared. But हाँ, सब लोग बातें कर रहे थे. I think it is going to be difficult. कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए बंद होगा, बट इतने ज्यादा दिनों के लिए होगा वैसा किसी ने नहीं सोचा था. And
This is our fifth one. Now from tomorrow onwards, it is going to be fifth lockdown. Nobody could imagine that, ऐसा कोई दिन आएगा जहाँ पे हम सब लोग बिना बिजनेस के, बिना काम के सिर्फ घर पे रहेंगे. So yeah, it has been really, really tough time. Just not for me, but for entire industry, and just not my industry, but I have a lot of friends like you, other people. Everybody is facing, the biggest challenge, this during this COVID time. I think only essential जितने भी businesses है, I think उनके लिए अच्छा है. But thankfully at least वो तो चालू है, तो हम लोग सब अच्छे से सब खाना वाना सब सारी चीजें ले सकते हैं, and we can survive. पर विपुल, हेयर स्टाइलिंग एंड सैलून भी बहुत ज्यादा एसेंशियल है, नहीं बहुत लगता लोगों आपको, के है ना? लिए एसेंशियल है. हम लोग तो हमारे इंडस्ट्री में हम सब लोग यही बात कर रहे हैं. आई थिंक दिस हैज टू बी एसेंशियल, बट आई थिंक पीपल हाँ, आर रियली अफ्रेड दैट बहुत ही क्लोज कांटेक्ट के साथ हेयर ड्रेसर्स या ब्यूटी थेरेपिस्ट वो लोग काम करते हैं. तो और ये कुछ ऐसी बीमारी है जो यू हैव टू हैव सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसकी वजह राइट. से आई थिंक गवर्नमेंट इज वेरी वेरी केयरफुल, एंड आई थिंक वी आर ऑल इन टू सपोर्ट गवर्नमेंट, एंड for the safety purpose, whatever we need to do, definitely we need to follow, and we will do it for our lovely clients. राइट, वेरी राइटली सेड. नाउ दैट अब धीरे धीरे लॉकडाउन 4 खत्म हो गया है, आजकल लॉकडाउन 5 शुरू होगा, तो धीरे धीरे बिजनेसेस भी खुलने लगे हैं. लेकिन सैलून इंडस्ट्री बहुत लेट खुली, और हर स्टेट में अलग अलग गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि आप कैसे खोल सकते हैं सैलून को. मुंबई में क्या गाइडलाइंस है, और क्या आप सैलून खोल सकते हैं इस टाइम पे? अभी तक कोई इंटीमेशन अपनी स्टेट गवर्नमेंट से आया नहीं है. हमारा एक पूरा सैलून इंडस्ट्री के जितने भी टॉप सैलून्स है, A+ कैटेगरी, A कैटेगरी एंड B+ कैटेगरीज, हम सब लोगों का ग्रुप है, एंड बहुत सारी चीजें हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी हम लोगों ने नितिन गडकरी से बात किया था बिजनेसेस को जल्दी से जल्द ओपन करने के लिए. बट हालांकि बॉम्बे में महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में इतने ज्यादा केसेस है, सो स्टेट गवर्नमेंट नॉट इन फेवर दैट कि कभी खुल जाए. बट होपिंग दैट आई थिंक ये जून के बाद खुल जाए. जून में भी मुझे लगता नहीं है कि बॉम्बे में सैलून्स खुलेंगे, बट बाकी बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स है जो सैलून ओनर्स है, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड द बिजनेसेस विद लिमिटेड आवर्स, विद 50% ऑक्यूपेंसी. अगर मेरे सैलून में 10 चेयर है तो मैं 10 क्लाइंट नहीं ले सकता हूँ, मैं सिर्फ 5 क्लाइंट्स ले सकता हूँ, एंड विद ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस लाइक PPE किट्स, बाकी हाइजीन मेजर्स जितने भी सैलून के लिए लेने चाहिए, वो सारे फॉलो करके पीपल हैव स्टार्टेड द बिजनेस. विपुल, आपने कहा कि जून के एंड में शायद खुल जाए और आप वापस सैलून खोल पाए, लेकिन जून में आता है मुंबई में मॉनसून, और मॉनसून के टाइम पे तो वैसे भी सारे बिजनेसेस बहुत ठंडे हो जाते हैं, लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, कभी कभी फ्लड सिचुएशन हो जाती है हमारे सिटी में. तो ऐसे में आपको लगता है कि हम बिजनेसेस को वापस रिज्यूम कर पाएंगे इन द टाइम ऑफ मॉनसून? सो डेफिनेटली बिजनेस तो शुरू करना ही पड़ेगा, बट क्योंकि सबके फिक्स ओवरहेड्स है, रेंट से एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉयर का भी घर चलना चाहिए, सारे एम्प्लॉइज है उनका भी घर चलना चाहिए. तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, एंड डेफिनेटली व्हाट यू आर सेइंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर जून में शुरू भी हो गया, जून से तो फिर बारिश शुरू हो जाएगी, तो फिर वापस सितंबर तक वही स्लो सीजन, मतलब कुछ इतना लोग आते नहीं है, ना इतने सारे इवेंट्स होते हैं, ना इतने सारे शोज होते हैं, लोग बाहर नहीं जाते बारिश की वजह से, जैसे आपने बताया कि फ्लड वगैरह होता है. तो ये भी एक और दुविधा है कि अगर जून में खुल भी गया तो भी अगले 3 से 4 महीना इतना बिजनेस को हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे. तो अभी ये पिछले 2-3 महीने का बर्डन है, और फिर उसके बाद और 3-4 महीने का. इसका मतलब मोटा मोटा ये साल खत्म हो गया. 2020, nobody wants 2020 anymore. मतलब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर दूं, I know, कैलेंडर even में से I हटा would दूं मैं. like 2020 को पूरी दुनिया से मिटा दो, किसी के लिए Seriously. अच्छा नहीं है. And I think आपका not only me सवाल but बहुत सब लोग वैसा ही बोल रहे हैं कि 2020 को हटा दो बस.
मेरे पास एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि अब तो मैं 2020 को गाली की जैसे यूज करूंगा। इफ आई वांट टू अब्यूज समवन आई से हे गॉट 2020। वो बिल्कुल आपका सलून मुंबई में है, प्राइम लोकेशन पे बांद्रा पाली हिल में आपका सलून है, और आपका मतलब छोटा सलून भी नहीं है, आपका बहुत बड़ा सलून है। आपने 2 फ्लोर ले रखे हैं, उसमें अकेडमी भी है। तो ऐसी प्राइम लोकेशन पे रेंटल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका जो रेंटल बर्डन है उसको रिड्यूस करने में कुछ गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प की है? I think in entire country there is no such law that you can reduce the rent. ये मेरे इंफॉर्मेशन के मेरे नॉलेज के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने पिटिशन फाइल की है, बहुत सारे लोगों ने केसेस वगैरह किया है, बट आई डोंट थिंक सो उसका कोई कंक्लूजन आएगा, क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में सारे लॉयर्स के जितने भी चैम्बर्स होते हैं वो रेंट पे थे, तो उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, तो उनकी भी दरखास्त कर दी, और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेंट आपने देना ही है, भले अभी नहीं बाद में दो, क्योंकि आपने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो यू हैव टू पे रेंट। बट हैविंग सेड दैट, अगर लैंडलॉर्ड के साथ आपका बहुत अच्छा रेपो है और आप उनको थोड़ा कन्विंस करके उनको समझाओ क्या कंडीशन है, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है, और ये सबका देखो बिजनेस रोटेशन पे चलता है, कैश फ्लो आता है एंड देन उस हिसाब से सारे प्लानिंग वगैरह होते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इवन फॉर लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज लैंडलॉर्ड्स के भी आगे कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, उनके भी कुछ प्लान्स होते हैं, क्योंकि फंड जाता है। आज देखो कोई किसी का भी पैसा आता है तो वो सीधा तिजोरी में नहीं रखता है या बैंक में नहीं रखता है, होते हैं बहुत कम लोग होते हैं, बट सब जनरली सबका रोटेशन चलता है। सो अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट हुआ है या तो फिर मुझे कुछ ऐसा रिलीफ मिला है, ना घर के रेंट का, ना सैलून का, या तो फिर एकेडमी के रेंट का। एंड नॉट ओनली मी बट इवन अदर माय फ्रेंड्स आल्सो, नोबडी हैज गॉट एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ। हाँ, डेफिनेटली वो लोग डिमांड नहीं कर रहे अभी, वो नहीं बोल रहे कि अभी मुझे रेंट दो, वो बोल रहे कि जैसे बैंक मोरेटोरियम हुआ है तो अब 3 महीने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देना। बट दैट्स अनदर बर्डन, बिकॉज अभी ये जो महीना है, बिजनेस कैसा होता है कि आज आपके पास जो टाइम है वो टाइम का आप मैक्सिमम फायदा उठाओ, एंड यू कैन एनकैश, एंड देन यू कैन हैव योर लाइफस्टाइल और योर फिक्स एक्सपेंसेस। बट अभी टाइम ही चला जाएगा और उसके बाद यू विल हैव अनदर लायबिलिटी, सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी यही सिचुएशन में, जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था कि मॉनसून आएगा तो फिर कैसे होगा, तो सोचो कि ये 2-3 महीने का रेंट, फिर मॉनसून आएगा तो तभी बिजनेस नहीं होगा, वो टाइम का भी रेंट होगा, तो कितना लायबिलिटीज ओवरऑल सबका बढ़ेगा। सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स जो है जिनके बिजनेसेस है, सबको आई थिंक दिस इज गोना बी अ बिगेस्ट चैलेंज। आई थिंक ये साल आखिरी में यही बोलूंगा कि अगर सरवाइव कर पाए 2020 दिसंबर तक, तो भी आपका सबसे ज्यादा या बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर सरवाइव नहीं कर पाए तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अगर किसी को बिजनेस शट डाउन करना पड़ा तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अभी ये सर्वाइवल, अभी बाकी सारे प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना है, जितने अपने रूटीन एक्सपेंसेस है उतना भी हम कमा लेंगे तो भी बहुत है। जी, अभी सिर्फ सर्वाइवल ही है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये टाइम सर्वाइव कर गए तो आप आगे भी अपने बिजनेस को बढ़ाने का, प्रॉफिट्स के बारे में बाद में सोच सकते हैं। और सारे इकोनॉमिस्ट अभी यही बोल रहे हैं सब बिजनेसेस को। इंडिया में एमएसएमई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं। सारे मतलब इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन इसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, और इसी को सबसे ज्यादा झटका मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही है। और मुंबई जैसे सिटी में जहाँ रेंटल्स इतने ज्यादा हैं, लोगों का सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया है। शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग मुंबई छोड़ छोड़ के वापस घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अभी कोविड-19 सिचुएशन है और आपके क्लाइंट्स भी बहुत डरे हुए होंगे। सबके मन में ऐसे कुछ होता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो आई डोंट वांट टू कैच द डिजीज। तो उस डर को भगाने के लिए आपने कोई प्रिकॉशंस लिए हैं अपने सलून में? Well, so yes, I completely agree. I think ये सबके माइंड में है, सबके अभी एक फियर पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में है कि मुझे कुछ हो जाएगा। So
मैं हमेशा मेरे जितने भी फैटर्निटी के लोग हैं मैं उनको बोलता हूँ कि आई थिंक ये टाइम डेफिनेटली फियर है बट वी हैव टू वर्क सच अ वे हम लोगों को उस तरीके से काम करना है वेयर वी कैन गिव देम कॉन्फिडेंस whenever they come Yeah. to salon instead of scaring them. फॉर एग्जाम्पल आपने शायद देखा होगा न्यूज में न्यूज़पेपर्स में सब जगह पे कि कुछ सैलून्स में जो डॉक्टर्स पीपी सूट्स पहनते हैं वैसे पहन के वो लोग काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो जरूरत नहीं है आकृति क्योंकि वो कभी आपको पहनने की जरूरत है जब भी आप कोई पॉजिटिव केसेस उनके साथ रहते हो उनको ट्रीट कर रहे हो उनको सर्विस दे रहे हो तभी उनकी जरूरत है तो मेरे हिसाब से वो जरूरत नहीं है क्योंकि पीपल आर ओवर डूइंग इट बिकॉज ऑफ फियर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत कर रहे हैं बट क्योंकि उनको डर है उनको ना हो जाए उनके क्लाइंट्स को ना हो तो वो पहन रहे हैं बट मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल क्लाइंट्स को भी बहुत ज्यादा फियर होगा सैलून विजिट करने के लिए क्योंकि जब बहुत ही कोई स्टाइलिश लड़की या लड़का उनके बाल बनाते हैं या तो फिर स्किन सर्विसेज करते हैं सडनली आप पूरे एस्ट्रोनॉट जैसे दिखते हो और सर्विसेज करेंगे सो आई थिंक दैट इज गोना बी क्वाइट स्कैरी सिचुएशंस वो क्लाइंट्स के लिए और फियर क्रिएट करेगा हैविंग सेड दैट आई एम श्योर पूरे कंट्री में जितने भी बड़े सैलून्स है मिड लेवल सैलून्स है वो सब लोग प्रिकॉशंस काफी अच्छे ले रहे हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री एक साथ है सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्लान करके हाइजीन के लिए सारे प्रिकॉशंस लेके वो लोग काम शुरू करने वाले जिन्होंने कर दिया है या तो फिर बॉम्बे में जब भी हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोगों ने भी वैसे प्रिपेयर किया है पूरी टीम को उनका ट्रेनिंग दिया है हमारा एक कभी जैसे आपने बोला स्किल इंडिया तो उनका एक सर्टिफिकेशन भी है पूरे कंट्री का जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट इफ यू पास दैट टेस्ट फॉर हाइजीन एंड सेफ्टी पर्पस तो ये सारी चीजें एज ए फर्टर्निटी हम लोग कर रहे हैं और इंडिविजुअल ब्रांड्स भी कर रहे हैं अगर पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करूं तो ये सारी चीजों के अलावा भी हमने ये सोचा कि कुछ नया लेके आए कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें हमने ये इंट्रोड्यूस किया है कि यू कैन बुक अ सैलून नॉट एन अपॉइंटमेंट सो फॉर एग्जांपल यू कैन बुक एंटायर स्पेस जस्ट फॉर यू बिकॉज जैसे आपने बताया कि सब लोग डरे हुए हैं सब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे सैलून में जाऊंगा या जाऊंगी बहुत सारे लोग रहेंगे सो डेफिनेटली अगर अपॉइंटमेंट्स लेके आओगे तो भी वो ऑप्शन है बट अगर आपको इतना फियर है तो आपको अकेले को या तो फिर आपके पेरेंट्स के साथ या तो फिर आपके सिबलिंग्स के साथ 2-3 जन को साथ में आके आपको पूरा एंटायर स्पेस बुक करना है वो भी हम लोगों ने एक प्रोविजन क्रिएट किया है जहाँ पे आप 2 घंटे के लिए पूरा सैलून बुक कर सकते हो आपको जो भी सर्विसेज करानी है विद अटमोस्ट सोशल डिस्टेंसिंग you can pamper yourself and you can get maximum confidence back to you and positive energy and you can get your services done at Vipul Chirasana salon. So this is something new we have done. I've personally taken services from you and I know how much you take care of hygiene everywhere in your salon. Everything is clean and crystal clear and white in your salon. So it feels nice when I enter and when I get my services done over there. Going forward, आपने कहा कि आप PPE किट अपने salon में नहीं रखेंगे, तो किस तरीके से आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो भी आ रहा है salon में वो COVID-19 फ्री है? So I didn't say people should not use PPE kits. I said people should not use PPE suit. Okay, PPE suit. तो दोनों में डिफरेंस है सो PPE किट डेफिनेटली जो मास्क पहनना है या तो फिर फेस शील्ड है या तो फिर कोई एप्रन पहनना है हैंड ग्लव्स पहनना है आपको बार बार सैनिटाइजर यूज करना है तो ये सारी चीज तो डेफिनेटली कंपलसरी है ही मैं बात कर रहा था पीपी सूट पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उनका कोई पॉजिटिव नहीं होगा उसके अलावा हम लोग उनका टेम्परेचर चेक करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं तो सूट सिर्फ नहीं करेंगे बट पीपी किट के जितने भी गवर्नमेंट के हिसाब से नॉर्म्स है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे हम लोग फॉलो करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू दैट सॉरी will you also be using disposable towels and gloves and all those things? Yes. So, अगर ये सब चीजें यूज करेंगे तो आपके एक्सपेंडिचर्स तो और बढ़ गए हैं पहले से क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा एडेड एक्सपेंडिचर हो गया हर क्लाइंट के लिए उनको डिस्पोजेबल उनके पर्सनल उनको ग्लव्स देने हैं उनको पर्सनल एप्रन देना है टॉवल्स यूज करने हैं
So how are you going to manage that? सो यही बात पे आगे थी। मैं बताना चाहूंगा कि जब से हमने सैलून या एकेडमी शुरू किया है, चाहे वो हमारे मॉडल्स हो या चाहे हमारे वैल्यूबल क्लाइंट्स हो, हमने सबके लिए डे वन से हाइजीन को सबसे टॉप पे रखा है। सो इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट रियली वरीड। जैसे आपने बताया कि आप इतनी बार सैलून आके गए हो, तो सैलून कितना एकदम क्लीन Yeah, होता है। हाइजीन इज लाइक it's अटमोस्ट प्रायोरिटी। यस, सो वी आर नॉट रियली वरीड बिकॉज हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको पता है कि किस तरीके का हम लोग सर्विसेज और हाइजीन को मानते हैं। और डे वन से अगर मैं डिस्पोजेबल की बात ना करूं, तो डे वन से हम हमेशा एक क्लाइंट के लिए एक ही टाल यूज करते थे, एक क्लाइंट के लिए एक ही कटिंग कैप यूज करना है। कोई भी ब्यूटी सर्विसेज के लिए आएंगे तो एक ही बार यूज करना है, देन वी यूज टू पुट इट इन वॉश, लाइक लॉन्ड्री के लिए, एंड ऑलवेज यूज जी. फ्रेश टाल। सो वहां पे भी हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बट हैविंग सेड दैट, अभी पूरे कंट्री में मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग डिस्पोजेबल, so even we are going to start with that because I am slightly against disposable. Reason why? Because it's not eco-friendly, and we have Yeah. taken certain precautions or certain, how do I say, that we are following green salon. So we don't use plastic. We try and avoid using any sort of stuff which will harm the nature. So ये सारी, और disposable actually it is not good because it's not biodegradable. So it's Right. not really good. But अभी considering the situation, we might have to start. We will start for some time and then फिर बाद में आगे देखेंगे the situation के हिसाब से, then we will change and we'll go back to the same towels and normal routine, Yes. the cycle what we used to do. Very rightly remarked, Vipul. This is the time we all are reinventing ourselves. कुछ ना कुछ नया हमें खुद से ही करना पड़ेगा और नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे in order to survive during these times. आपके सलून में बहुत सारा स्टाफ भी है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं. How are you managing to take care of them? Well, so it is tough time for me. Likewise, even it is tough time for them. So we do education. We are making sure we are engaged. We have done couple of sessions. We are working together to create a proper guidelines for all the precautions for health and safety. So yeah, we are quite connected and involved, and even they know and they are with us. So I'm really thankful to my team. They are totally with us, and they're like, don't worry. I think this is the time we need to fight together, and we will come through. Yeah. बिल्कुल, आपसे सीखने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं और आई थिंक मैं किसी भी हेयर स्टाइलिस्ट से मिलती हूँ तो वो सभी आपको जानते होते हैं, बहुत लोगों ने आपसे सीखा हुआ होता है. तो इस टाइम पे आपकी एकेडमी भी आप ऑनलाइन चला रहे हैं, तो कहाँ पे कोई इंसान अगर सीखना चाहे, प्रोफेशनल आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपसे अगर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहे इस टाइम पे, क्योंकि आपके बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आप रोज लाइव सेशंस भी दे रहे हैं, तो अगर कोई प्रोफेशनल आपसे सीखना चाहता है तो कैसे आपको कांटेक्ट करें? So definitely they can visit to our website, that is vipulchudasama.com. या तो फिर गूगल को भी पूछ सकते हैं, विपुल चुडासमा, गूगल बताएगा कहाँ पे एकेडमी है और वेबसाइट का लिंक क्या है. So they will get to know about us. We have complete detailed information about each programs for online and also offline what we do in academy. तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी. तो जैसे मैंने बताया कि ये जो कोविड टाइम है आकृति, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई है जो आपने शायद नहीं सोची थी, या तो फिर आप सोचते थे बट कभी कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड द कल्चर ऑफ द पीपल. Like for example, for Digital Academy, we have been thinking from last 3 to 4 years कि ऑनलाइन सेशंस हम लोग शुरू करें, बट कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री के एड्रेसेस जो है इतने ज्यादा प्रो नहीं है, या तो फिर कहीं ना कहीं वो कंफर्ट नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ कुछ सीखना और वो सारी चीजें. बट आज कोविड की वजह से आई थिंक दैट्स अनदर वेरी पॉजिटिव पार्ट दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी स्टार्टेड ऑनलाइन सेशंस. And touch wood, we are getting good response for that, and people have done couple of sessions with us.
दैट्स अमेजिंग विपुल। आप जो क्लासेस चला रहे हो उसमें आई एम श्योर बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ रहे होंगे सीखने के लिए भी आपके साथ। आपकी जो एकेडमी है, आपने क्या वहाँ के सब स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कर दिया है? नो, सो जिन्होंने फीस पे ऑलरेडी की है एकेडमी में सीखने के लिए, जहाँ पे उनको प्रैक्टिकली मॉडल्स करना वगैरह होता है, एक उनका एक पूरा प्लान सिलेबस है, तो उन जी। उन उन लोगों का हम लोगों ने नहीं प्लान किया है, क्योंकि ऑनलाइन पे इट इज मोर अबाउट लुक एंड लर्न, right? या Practically you can't experience. So a lot of people have paid fees, they are already enrolled and midway of their programs. तो डेफिनेटली हमें रुकना पड़ेगा, एकेडमी जब खुलेगी तब वो वापस आएंगे और सीखेंगे, बट उनको भी हम लोग एंगेज रख रहे हैं, उनके साथ भी हम लोग उनका रिवीजन कर रहे हैं, जो उन्होंने सीखा है वो एटलीस्ट जी। जूम मीटिंग के साथ जूम सेशंस के साथ वी कैन ब्रश अप द स्किल्स। तो ऐसा ना हो जाए कि मतलब 2-3 महीने की वजह से चीजें भूल जाए, क्योंकि वो फ्रेशर्स है, सो वी आर कीपिंग देम एंगेज टू। That's amazing, Vipul. You're doing great job teaching everyone and इस टाइम पे जब री इन्वेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप इतने शानदार तरीके से री इन्वेंट कर रहे हैं सब चीजें, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। अब जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और आपने फिजिकल क्लासेस भी लिया पहले, there are some challenges which you might be feeling. तो as a student, if I am coming to you to learn, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना चाहिए before I sign up for any online learning class for hairstyling? यू मीन आफ्टर कोविड? Not after COVID, actually during the present time. अगर अभी मैं फ्री बैठी हूँ, कुछ काम नहीं हो रहा है, मुझे सीखना है, अपने आप को अपस्किल करना है, तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट ऑनलाइन सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको आप कुछ सजेशन देंगे? यस, डेफिनेटली। सो अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ सेशंस हमने किए, उसमें ऑलमोस्ट लाइक 2-3 वी हैड फ्रेशर्स जिन्होंने आज तक कभी हेयर ड्रेसिंग नहीं किया है, बट वो सोच रहे हैं कि मुझे ये इंडस्ट्री में आना है। तो आई थिंक ये हर फ्रेशर के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस को, ये ट्रेड को समझने के लिए कि किस तरीके का होता है, क्या होता है, and they can explore, and maybe if they feel this is the right thing and this is what they want to do it after getting information about what we are doing. So freshers के लिए I think ये सबसे बेस्ट है। Apart from that, professionals, तो अगर वो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर वो जानकारी लेंगे, तो हमने क्या किया आकृति के एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म बनाया है, जहाँ जी। पे आप अपने आप को पूछ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्या ये मेरे लिए सूटेबल है, क्या मेरे पास इनफ इंटरनेट डेटा पैक है, क्या मैं अगर ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चंस करना है तो मैं हेजिटेंट फील करूंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या जो सब्जेक्ट के बारे में मुझे जानना है वो सब्जेक्ट सही है, यही मेरा इंटरेस्ट है, हाँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए जो आप अपने आप को पूछ सकते हो, और हाँ या ना सब में हाँ आता है, डेफिनेटली आप खुशी खुशी ये क्लास के लिए आप एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। Okay, that's amazing, Vipul. Thank you so much for all these amazing information. I'm sure जितने लोग भी हमें यहाँ देख रहे हैं वो लोग को बहुत वैल्यूएबल लगी होगी ये information. Now another question जो मुझे आया आपसे पूछने के लिए वो ये था कि जो सलॉन्स इतने बड़े नहीं हैं, आपका जैसे बड़ा सलॉन है, जो छोटे सलॉन्स हैं, वो सलॉन वालों को तो बहुत बड़ा एक झटका लग गया है। क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, रेंट्स को पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टाफ को पे करना है, और इनकम जनरेशन ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेज हो सकते हैं जो वो इस टाइम पे करें और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाए? राइट, सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग, आई एम श्योर लॉट ऑफ सैलून्स हैव स्टार्टेड। अगर किसी ने शुरू नहीं किया है तो रिटेलिंग दे कैन स्टार्ट, ऑनलाइन रिटेलिंग, होम डिलीवरी जो वो एक शुरू कर सकते हैं, जो एटलीस्ट सैलून में आके क्लाइंट सर्विसेज नहीं कराएंगे, एटलीस्ट प्रोडक्ट्स आपके पास जितने भी सैलून में वो उसको आप रिटेल कर सकते हो। उसके अलावा ऑल्सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्टार्टेड विद वर्चुअल कंसल्टेशन,
So you can keep, Right. you can keep your clients engaged. If anybody has any concerns or any questions or anything, you can do virtual consultations. वो एक तरीका है जो आप हर client के साथ आप कर सकते हो. Apart from that, जो salon में जितने भी services है, that you can't really do anything. कुछ लोगों ने ये भी शुरू किया है होम सर्विसेज, बट Right. मुझे लगता है होम सर्विसेज पर्सनली आई डोंट रियली एनकरेज और आई एम नॉट रियली बिकॉज हर क्लाइंट को आजकल सिर्फ बाल कटाना ही नहीं होता है, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, right? And for experience, you need to have ambience. You need to have all possible, facilities or equipments or tools, and you need to really pamper yourself. I understand, this is a really difficult time. A lot of people are thinking, अरे ठीक है, experience तो नहीं चाहिए, but at least मेरी जो necessity है वो fulfill हो जाए तो भी बहुत है. But visiting, everybody's house, also it is not good for an artist as well as, for the customers. Because कौन कहाँ पे कैसा है किसी को पता नहीं है. Right? I'm sure घर वाले सारे precautions लेंगे. जो artist visit करने वाले हैं वो भी precautions लेंगे. But I feel that, if you don't do it, it'll be really good. So बहुत सारे ऐसी possibilities है people can explore. But I think also you need to think about in today's world, art is second, first is safety. First is safety. Yeah. Yeah, and that has always been your motto. Yeah. And it was a wonderful advice for all the people who are watching. अगर आप revenues generate करना चाहते हैं तो these are the alternate ways जैसे आप revenue generate कर सकते हैं. Plus teaching is also a very good profession जिसमें आजकल जितने भी experts हैं वो सब online teaching कर रहे हैं जैसे आप भी कर रहे हैं. So always remember कि आपको जो आता है there is going to be one person जिसको उतना भी नहीं आता है, तो आप उसको भी सिखा के शायद इस टाइम पे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. नाउ आई एम मूविंग टू माय पर्सनल क्वेश्चन विपुल. But yes, I would like to just make one point, about teaching what you mentioned. Yes. See, purposely I did not mention about that because teaching is something, it's very, very critical job. Yeah. Right? Why? Because it is about, creating somebody's future. So because I want to earn money, that doesn't mean, I will start online classes or, I will start, imparting knowledge and start making money. I would not suggest that. If you're really professional trainer, you have an academy, then definitely you should go for it without hesitation. But if you're not a trainer, if you don't have all the material which you would like to give it to people, then please don't do it, because even wrong guidance will lead to another disaster for anybody. And a lot of people, they watch, certain videos or certain, tutorials on YouTube, on Instagram, on Facebook, everywhere. Every video is put up on social platform doesn't mean it's the right way to do it. Right? So Yeah. people just believe that and people experiment that. So I always feel that, education is something very, very critical. Make sure if you have really, really right and logical approach towards that, and if you can really make someone's life, then only do it. Otherwise, don't do it. Because I've seen, so many lanes has, academies nowadays, in entire country. Anybody and everybody is training. It's good, if they have thorough knowledge. I'm really happy that they are inspiring and educating people. But if you don't have right knowledge, then don't just do it for sake of it or just to make money out of that. I think that's the right approach to it. कि आप सीखो तो सही इंसान से सीखो वरना मत सीखो. या तो फिर आपको पता है तो सही सिखाओ, सिर्फ सिखाने के लिए जी. मत सिखाओ. जी बिल्कुल सही कहा आपने विपुल. अभी मैं अपने पर्सनल क्वेश्चन पे जाऊंगी. देखिए मेरे बाल आपने ही लास्ट कलर किए थे, अभी कलर भी जा रहा है, बाल भी लंबे हो गए Fade हो हैं गया. और मेरा स्कैल्प भी ड्राई हो रहा है, तो मैं क्या करूं? आई थिंक कलर के लिए कुछ मत करना. यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मैसेज करते, कॉल करते कि करे अभी मेरे रूट्स दिख रहे हैं, मैं कौन सा बॉक्स कलर लगा दूं या कुछ. प्लीज मत करना, बहुत मेहनत लगती है. आपको पता है जब भी आप सैलून में आते हो 5-6 घंटे 7 घंटे
कभी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करते तो 7-8 घंटे भी लग जाते हैं. So it takes lot of time and effort to beautify you, and that's the reason you get a lot of compliments. So please don't do anything at home. Any which is you can't go out, आप बाहर नहीं जा सकते हो. So Yeah. please, don't do it. Anything. At least you can play with, styling or something. You can do different kind of styling if you feel that you have gray hair. Not you don't have gray hair, but any other friends, anybody is watching, us, they can just play around with Yeah. styling or something like that. Thankfully, no grays yet. Yeah. But Yeah, please okay. don't color your hair at home. Don't cut your hair at home. Lot of people I've seen, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि वो videos, don't believe जी. in videos, which you see on, any sort of, social platforms are right. I'm not saying everything is wrong. Some of them are not appropriate. A lot of people, they take their hair and they cut the fringe. Yeah, and they chop it. And Oh, then it fringe go becomes, wrong. so, Yeah, I've so seen if those somebody's, videos on YouTube. so if Haircut somebody's, fails. yes. If somebody's doing it and they're getting it right, they must have tried a million times. And that's the reason they are Right. showing you. Because you need to keep practicing to master that, how you can do your own fringe. I'm not saying it's impossible, it's possible, but I think you will, first couple of times, you will face disaster. So don't do anything at home. Wait, definitely we are going to open salons very, very soon. You can come to my salon, you can go to your neighborhood salons, wherever you're going, whichever, any, particular professionals you visit to. So just wait for them. Because at the end, if you will not go to them, how they will survive, Right. right? If you're Yeah, going to do it's like everything at complete home, ecosystem. yeah, so it's a circle, right? राइट एंड सो विपुल आपने कहा घर के बाल कलर नहीं करने चाहिए तो ये जितने प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिक रहे हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कलरिंग वाले हेयर कलर वाले वो यूज क्यों नहीं करने चाहिए या क्योंकि उसको यूज करके बाल खराब हो जाएंगे क्योंकि वो आपका सही एप्लीकेशन नहीं होगा. आप जी घर पे आप मिक्स करके उसको लगाओगे, so you will not have appropriate application. See what we do, we train ourselves. सालों से अपने आप को ट्रेन करते हैं ताकि कहीं जी पे भी कोई भी चीज ऐसी ना हो जहाँ पे आपको कलर बैंड्स आए, जहाँ पे आपको डिसकलरेशन हो, वो पूरा अच्छे से इवन दिखे. तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, राइट? आप घर पे करोगे तो आगे से कर पाओगे, पीछे से नहीं कर पाओगे. कहीं पे डार्क हो गया, कहीं पे लाइट है, तो बहुत ही वो मल्टी कलर जैसा दिखेगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू लुक प्रेजेंटेबल. सो इनफैक्ट रीग्रोथ है फिर भी इवन दिखेगा. अगर आपने कहीं कहीं पे लगाया, पीछे नहीं लगाया क्योंकि पीछे देख नहीं पाते हो आप, थोड़ा बच गया तो नीचे नीचे लगा दिया, सो यू विल हैव कलर बिल्डअप, एंड दैट कलर बिल्डअप विल लीड टू ड्राइनेस. ओके तो ये बहुत सारी चीजें, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट यू यूजिंग, इट्स अ केमिकल, राइट? राइट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ केमिकल Yeah, so you need to make sure that if professional is doing, then they have mastered that, spending years training themselves, and then they do it. So doing at home, it is easy and convenient, but it's not good for your hair and scalp. हमने विपुल इंस्टाग्राम पे देखा है बहुत सारे एक्टर्स को भी और बहुत सारे नॉर्मल लोगों को भी स्पेशली लड़के जिनके बाल अब 2 महीने में तो बहुत ही बड़े हो गए हैं बेचारे परेशान हो रहे हैं और वो लोग सब गंजे हो रहे हैं अभी अपना रेजर लेके उनको आप क्या कहोगे कैसे एक रेजर मार ले सर पे या फिर खुद से चॉप करे क्या करे I think they should wait for us. सब लड़के आई पिटी ऑल द गर्ल्स जिनके बॉयफ्रेंड्स के बाल लंबे होते जा रहे हैं बेचारी they Please, don't want to please, date another I girl think all of you, please wait for us, because we need you. We need to survive. If you will not yeah visit us, how we will survive? So please wait for us. And I think it's a moment, it's just matter of couple of months. Maybe you will have a different look altogether, जो आपने कभी सोचा नहीं, कभी आप लंबे बाल नहीं कर पाए हो. तो ये भी एक पॉजिटिव साइड सब सोचोगे. This is an opportunity for you. grow your hair try a different look Yes, yes. okay people now one quick tip home remedy for people to maintain their hair at home I think वैसे तो बहुत सारी है, but simple way I would say, keep oiling your hair.
एंड ऑयल कौन सा नहीं यूज करते करना लोग. चाहिए? पीपल डोंट यूज ऑयल बोलते हैं, दे डोंट यूज रेगुलर ऑयल. अभी तो आप ना पार्टी में जाना है ना कहीं जाना है, राइट? सो डेफिनेटली यू कैन जी. ऑयल योर स्कैल्प एंड हेयर, पर्टिकुलरली स्कैल्प. कौन सा ऑयल अगर पूछोगे तो मेरा जो फेवरेट है, जो बहुत ही वर्क करता है, वो है महाभृंगराज. महाभृंगराज. ये तो, अरे ये तो बहुत सालों पुराना ऑयल है. हाँ, वो ग्रीन कलर का आता है, छोटा सा बॉटल आता है, जी. आपको कहीं पे भी मेडिकल में मिलेगा. बहुत ही अच्छा है. बाल भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, घने भी हो जाते हैं. सो इट्स वेरी जी. गुड. आई हैव बीन यूजिंग इन द salon since years for my ओके. clients. It's very good सो oil. आई विल स्विच भृंगराज नाउ. अभी तक तो Yes, मैं कोकोनट लगा रही थी, अब मैं भृंगराज लगाऊंगी. it's very good. वंडरफुल. एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल अबाउट डैंड्रफ? लोगों को Uh, डैंड्रफ हो जाती है, उसकी होम रेमेडी कोई आप बताएंगे? I would suggest treatment or the appropriate shampoo for dandruff. But अगर घर पे फिर भी अगर आपको करना है, you can use curd. But it depends. अच्छा. Somebody maybe is not comfortable. A lot of people use lemon with curd. या. So yeah, these are the different. But I think if you oil your scalp, I don't think so. You will have any sort of challenges. Dandruff के बारे में और एक मैं टिप देना चाहूंगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स, मैंने कल भी बताया था, मैं जब लेखा के साथ कर रहा था. Lot of people think that if you have dryness, it's dandruff, and people end up buying some shampoos from market or supermarket or medical. But always you need to see if it's a white flake, then it's a dryness. If it's a yellow Oh. flake, slightly pale yellow flakes, that is dandruff. So there's two difference. So if it's yellow slightly, then only you go for a anti-dandruff shampoo or a treatment, और घर पे आपको कर्ड वर्ड लगाना है, वो सारी चीजें. But if it's just जी. white flakes, then that means you need to hydrate your scalp. You need to make sure you keep drinking water and use curd. Apply for for a couple of hours, and then you can wash it. दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टिप विपुल, बिकॉज मैं 3 दिन पहले मेरा स्कैल्प दिख रही थी और मुझे लगा मुझे डैंड्रफ हो गया है, बट इट वाज द वाइट फ्लेक. सो आई थिंक आई नीड टू Just ऑयल माय dryness. हेयर नाउ. Yes. It was just white something I found here. So I And was like, oh my god, about dandruff. But it it's it not. it happens, for a lot of reasons, just not one. It's hormonal, it's based on your diet. कभी कुछ खाने की वजह से, तो बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से आपको if you are always in AC, your scalp will Yeah. get dry. So बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो antifungal हो जाता है, and then at the end you have dryness or dandruff. So these are great tips, people. अब जाते जाते आप मुझे बस एक बात बता दीजिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो कौन सा ट्रेंड है जो हमें करना चाहिए फॉलो, और कैसे हमें अपने बाल स्टाइल करने चाहिए आफ्टर दैट? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्लाइंट सैलून पे आएंगे, सब लोग छोटे करा देंगे, क्योंकि वापस लॉकडाउन आ गया तो क्या करेंगे. So I think most of the people are going to go bob. But having said that, it's very, very personal choice and style. I believe that every individual person has personality and character and lifestyle. So definitely, whatever personality and lifestyle you have, according to that, you should always go for any sort of look, haircut, color, styling, anything. Just don't go for anything where everybody is doing. Right? It has to be absolutely your own personal style rather than following anyone. And that's what we do at Vipul Chudasana Salon. We try and create look which suits every individual, because suitability is something very, very important rather than just following. Maybe tomorrow some of the Hollywood actress or the Bollywood actress will come up with something different look. Bollywood actresses सारे इतने ज़्यादा experiment नहीं करते हैं, but people see that, people start following that. It's good, it's really good to take inspiration, but always do something which suits you, what you can carry, because उसमें भी disasters होते हैं. उन्होंने करा लिया, मैंने करा लिया, तो मैं तो जरा भी अच्छी नहीं दिख रही हूँ.
because there's no suitability. You don't consider that. So I think you can set your own trend and people can follow you. And this That's is something very correct. precisely the reason why I come to you, because you always give me a haircut that suits my personality and that enhances my features. And this is a speciality which you possess, and that's why I call you a hairigician. Hey, by the way, I only wrote one love letter in this entire lockdown, which is to you, my L'Oreal hair professional. Love you for that. And seriously, people loved it, especially L'Oreal team and a lot of my friends also, they messaged me. It's like really, really to the point. इतना बड़ा लेटर मतलब पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, but whatever you felt, it was so natural and it was amazing, beautiful. Thank you so much for that. It Okay, was all the last minute. people who have I not, know. I'm so sorry. And all the people who have not seen that video, you can see it's on my page also, it's on Whipple's page also. I have written Yes. a nice video love letter to him. So watch it. Thank you so Thank much, you, Akriti, for Vipul. last minute. Thank you so much for joining me here. I think it was a wonderful, very educative session. बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपके बारे में जान के और इतने सारे वैल्यूएबल टिप्स लेके. My Thank you pleasure. so much. And before you go, many congratulations on the good news. I'm Oh, not thank sure you if so I'm much. supposed to say about that, but yeah. Thank you so much. Thank you. You are amazing host, Akriti, and I know that you're going to create wonderful future ahead. Thank you so much, Vipul. Lots of love Thank to you. you. Love you. Bye. Thank you. Bye bye.